The news from TOI says Dalit IM students get less moolah. The average salary for Dalit is at least 2 lakh less than the average salary at premium B schools. This is from the survey. The New Delhi based research organization C4, which conducts an annual B school survey, used RTI Act to expose the fact that SC/ST students are paid way below general category students during placements, and the lowest salary जिसको मिलता है वो भी एक दलित होता है. This is as per the survey. Again, inside IIM, one of the study says that candidates with poor academics record, less than 70% in 12th, 10th and graduation, and from less illustrious college, they fare very poorly during placements. Also, another observation says that candidates with below average command over the English language will suffer more during the placements, because you'll struggle to face the GD rounds of most firms if your English is bad. This is the story of one of the person who got admission in IIM. He says I am from the SC category, one of the IIMs, but I was not able to make up my mind to join IIM because of low CAT percentile, and he has seen that inside IIT the condition was really bad and IIM के अंदर भी same होगा उसको लगा, so he didn't take admission. I have made a video on this separately. You can check this out for more details. Hello everyone, welcome back to my channel All Sorted. This video is going to be helpful for you if you are going to do your MBA soon. Basically, I'll tell you about the realities inside MBA. What we expect before going to MBA, the reality is quite different. So especially this video will benefit SC, ST, OBC candidates basically coming from reserved categories. Okay, point number 1, navigating placements inside MBA. ओके सो मेनी ऑफ अस थिंक यार अच्छे कॉलेज में MBA करूँगा, मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, मेरा पैकेज लग जाएगा जितना एवरेज पैकेज दिख रहा है कॉलेज का. सपोज 20 lakhs इज शोन एज द एवरेज पैकेज और 18 lakhs, तो उतना तो मुझे मिल ही जाएगा. वो यार मैं एवरेज थोड़ी हूँ, मैं अबव एवरेज हूँ, राइट? So soon after you enter the MBA, when you'll have the shortlist for your summer placements etc., the reality will soon dawn upon you. It's quite different. आपको हो सकता है 18 लाख क्या 10 लाख 12 लाख का भी पैकेज ना मिले. So ऐसा क्यों हो सकता है? There can be a lot of reasons, especially if you're coming from reserved categories. People don't get good shortlist, and there are some reasons behind it. There can be discrimination at the interview stage as well. आपके सरनेम से पता चल सकता है, आपके पास्ट एकेडमिक्स अगर स्कोर कम है तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको एडमिशन कैसे मिल गया, मे बी फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी. सो दे मे नॉट आस्क यू डायरेक्टली, बट देर आर सटल वेज टू अंडरस्टैंड विच कैटेगरी you belong to. Some people can ask you directly or indirectly. The placement committee can do some politics, so a lot of things can happen. So this video is not a blame game. This video is about the solution mindset, growth mindset, what you need to do before you go for MBA so that you get benefited overall. So navigating placements, you want to have an edge over others, you'll have to have your personal brand. What does personal brand mean? Suppose I am going, मैं खुद का experience बताता हूँ. When I went for IFT interview, my whole interview revolved around my YouTube channel. How the YouTube algorithm works, how I make money, how I got it monetized, how I shoot my videos, what are the YouTube analytics. So everything went around that. So that is my personal brand. Akhil is a YouTuber and also an MBA aspirant. He's good. He wants to go for marketing and उसने already ये सब किया है. So he's a good fit. And I converted IFT. Similarly, new IIMs में I was made to dance because I am also into dancing. So I carry some personal brand along with me. You also need to have yours. Not necessarily dancing, YouTubing. There are so many hundreds, thousands of things that you may be, you just need to be good at one or two things. And that is your personal brand. Carry that story with you. जो भी आपने किया है, कुछ आप डिबेट्स में हो, सिंगिंग में हो, आप पेंटिंग में अच्छे हो, आप जिम हो, फिटनेस एंथुजियास्ट हो, आप रीडिंग में हो, आप कुछ भी कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इट कैन बी एनीथिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुछ भी, चेस. आपको बस उसके बारे में बताना है और उसके बारे में अपनी एक स्टोरी बनानी है. मे बी इफ यू वन समथिंग at the level, district level, national level, collect the certificates of that, because that is going to be beneficial. So you need to have your personal branding. ठीक है? So don't be shy. I was also shy कि यार मैं अपने बारे में कैसे अच्छी चीज़ बताऊँ, but you will need to shed that fear, that apprehension, and you need to carry your personal brand. It can be anything, the story about you that people will remember.
So, what constitutes your personal brand is the skills, experience, and personality. It's the intersection of all three. It should be unique, authentic, and relevant to your personality. And the intersection is your personal brand. So, identify what is your personal brand. Next is Excel, PowerPoint, Microsoft PowerPoint and story टेलिंग. These three skills. एक्सेल में आपको बहुत सारे डैशबोर्ड तक बनाने आना चाहिए. एडवांस एक्सेल तक आप कोर्स कर लो, यूडेमी, कोर्सेरा या कोई फ्री यूट्यूब से कर लो. पावर पॉइंट का कोर्स यूट्यूब से या यूडेमी, कोर्सेरा से कर सकते हो कि अच्छे स्लाइड्स कैसे बनाने हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन कैसे देना है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम 60% ऑफ द टाइम इन MBA you will be working on Excel, PowerPoint, your assignments, and you will be the most important skill is storytelling. How you are sharing the story. People don't care about the ice cold number statistics. They will care about how you present that story impact. So storytelling is a skill that will be very beneficial for you. So, storytelling essentially invokes emotion in people, and emotion is very important. And there's a psychological fact that dopamine, neural coupling, mirroring, and cortex activity is how storytelling affects the brain. For example, dopamine. The brain releases dopamine into the system when it experiences emotionally charged event, making it easier to remember and great accuracy. So, bland statistics से ज़्यादा आपको storytelling ज़्यादा काम आएगा. So there are plethora of books on storytelling. You can explore it. For example, these are some of the suggestions you have for storytelling books. So you will be awesome if you gain this skill. ठीक है, तो एक्सेल, पावरपॉइंट एंड स्टोरी टेलिंग, इसके ऊपर बुक्स है, कोर्सेज है, पेड कोर्सेज भी कर सकते हो. दैट इज इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ. डोंट थिंक एट आई एम परचेसिंग दैट कोर्स ऑफ 5,000 रुपये का कोर्स क्यों करूँ, यूट्यूब से फ्री में पढ़ लेता हूँ. बट अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस हो रही है और द क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो देन इट्स नॉट वर्थ इट. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एटलीस्ट इन दीज 3 स्किल्स. कैरी द सर्टिफिकेट्स जो भी आपने कोर्स किया हुआ है. अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, आप HR में हो, आप ऑपरेशंस में जा रहे हो, आप फाइनेंस में जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड कोर्सेज, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस करके अंदर जाना, वो आपके CV पे अंदर छप जाएगा, आपको एज मिल सकता है. These are some of the best platforms. Top 10 free online course platforms. फ्री में भी मिल जाएगा, पेड में भी मिल जाएगा. सर्टिफिकेशन कोर्स करना ज़रूरी है. I personally use Udemy and Coursera for most of my learning needs and do certification. Okay, point number 2 is having business acumen. Okay, ultimately MBA में जाओगे, आपको business acumen नहीं है तो कुछ आपका बहुत सारे जो ओपन कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिल जाता है. बिकॉज उनके बहुत सारे कुछ फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो IIM ABC में होंगे, तो वो उनको ऐसी चीज़ें बता देते हैं, वो पहले से कर लेते हैं. दे वोंट ऑल्सो शेयर विद अदर पीपल. दिस इज ऑल्सो आई हैव सीन. So that's why I'm telling you business acumen is really important inside MBA, and you can develop it. And the beautiful thing is you can work towards it. अपने हाथ में मेहनत है और कुछ नहीं है. ठीक है, भले ही आपके पेरेंट्स एकदम अच्छे हाई-फाई घराने से आप ना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स IIMs में ना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, बिजनेस एक्यूमेन यू कैन डेवलप इट योरसेल्फ. मेहनत तो आपके हाथ में है ना भाई. तो आप बिजनेस एक्यूमेन के लिए क्या कर सकते हो? नंबर 1 सोर्स इज रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे. वेरी वेरी अंडररेटेड. इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, 2 न्यूज़पेपर आपको रोज़ पढ़ने चाहिए. इकोनॉमिक टाइम्स तो डेफिनेटली, क्योंकि वो बिजनेस एक्यूमेन, वो जो आप पढ़ोगे उसका लैंग्वेज है, वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा. इंटरव्यूज़ में बाद में काम में आएगा, GD में काम में आएगा. Some of the book recommendations are here on your screen. 80-20, Deep Work, Smarter, Faster, Better, 0 to 1. There's a book by Innovator's Dilemma. There's Good to Great, Blue Ocean Strategy, Lean Startup. ये करने जा रहे हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स, तो आपको बिजनेस के टर्म्स पता होने चाहिए, आपको बजट का एनालिसिस आना चाहिए, आपको बैलेंस शीट पढ़ते आना चाहिए. सो हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, ये वीडियोस देखो. स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, राइट, सर्च ऑन इट, हाउ स्टॉक्स राइज. इंटरव्यू सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बेसिक कोर्स कर लो. इकोनॉमिक्स के ऊपर आपको पता होना चाहिए. GDP क्या होता है, स्टेट GDP क्या होता है, इंडिया का कितना है, 2030 का इंडिया कहाँ तक पहुँच सकता है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन से टर्म्स में, रियल GDP क्या होता है. बिजनेस एक्यूमेन यू कैन ईजिली डेवलप थ्रू न्यूज़पेपर्स. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, और अगर आपको कोई टर्म्स नहीं समझ रहे, आपको गूगल कर लेना या ChatGPT में डाल के उसका समझ लेना. Investopedia इज ऑल्सो वेरी गुड साइट. So reading newspapers. Next is 2 ऐप आप डाउनलोड कर लो, McKinsey Insights and Deloitte Insights. So these 2 apps are really helpful to read business related articles, in-depth articles, McKinsey Insights and Deloitte Insights. So इसका आदत आपको लगाना है. आपके पास 2-3 महीने बचे हैं फॉर MBA स्टार्ट होने के लिए, 1-2 महीना बचा है. अभी से आदत डाल दो, क्योंकि आपको समर प्लेसमेंट्स में भी अच्छा प्लेसमेंट उठाना है.
I highly suggest you download Google Podcast on your phone, either on your App Store or Play Store. It has lot of business related podcasts that you can subscribe to. Your life will be sorted 10-15 minutes every day. So do subscribe for more suggestions. Okay, point number 3 पे आता है networking and mentorship. Okay, now networking is one of the best skills. Inside MBA, people don't learn that much from professors, but from the peer group that is around them, from the seniors. So अगर आप थोड़ा शाय हो, इंट्रोवर्टेड हो, आपको अभी से यू नीड टू शेड दैट, क्योंकि वो आपको डिसएडवांटेज कर सकता है. आपको बहुत ओवरटली एक्सट्रोवर्टेड नहीं होना है. यू शुड बी इतना एक्सट्रोवर्टेड कि आप लोगों से जाके बात कर सको, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा. लिंक्डइन पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हो आपके सीनियर्स को. देखो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज से, सपोज IIM में आप एडमिशन ले रहे हो, IIM रांची में, तो IIM रांची में कौन सा सीनियर है जो मेरे कॉलेज से निकला है, क्या मैं उससे पूछ सकता हूँ कि उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैं कौन से स्किल्स एक्वायर करूँ, ये प्लेसमेंट के लिए कौन से बेस्ट मैं कोर्सेज कर सकता हूँ कोर्सेरा पे, क्या मैं उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछ सकता हूँ, लिंक्डइन पे एक रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, राइट. उनसे पर्सनली एक कॉल कर सकता हूँ. व्हेन आई एंटर द MBA स्कूल, कैन आई टॉक टू माई सीनियर्स, आइडेंटिफाई द पीपल दैट कैन हेल्प मी, दैट कैन मेंटर मी. ईगो अपना कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर बेनिफिट चाहिए टोटल MBA का, तो नेटवर्किंग और आपको मेंटर्स भी ढूंढने पड़ेंगे. आपके सीनियर्स हो सकते हैं, सुपर सीनियर्स हो सकते हैं. सो डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट. ईगो है तो हटा दो यार, क्या करना है अपने को बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट उठाना है, राइट. आपका वो एम है. सो व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन दैट. स्पेशली फ्रॉम द अपर क्लास सोसाइटी हु कमिंग फ्रॉम मेट्रो सिटीज़, दे हैव एक्सेस टू ह्यूज थिंग्स. दे अटेंड सेमिनार्स. उनके पास ऐसे लोग होते हैं सोसाइटीज़ में ही जो बहुत सारे IIMs में हैं, तो उनकी वो बातों से ही उनको काफ़ी कुछ एडवांटेज मिल जाता है. अगर आप Tier 2 टाउन से आ रहे हो, Tier 3 से आ रहे हो, रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो, आपका इतना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, एजुकेशन में ज़्यादा लोग नहीं है, सो यू नीड टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स. आपको लोगों से खुद जाके पर्सनल मेंटरशिप लेनी पड़ेगी. आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू. आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे कोर्सेरा पे, यूडेमी पे, नॉर्मल कोर्सेज भी, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग. इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप बेसिक चीज़ें अभी सीख रहे हो. ये दी स्मॉल थिंग्स विल एड अप टू योर पर्सनैलिटी. हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, हर एक MBA बैच का दोस्त ज़रूरी होता है, हर एक सीनियर ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर वो सीनियर ने उस समर इंटर्नशिप का इंटरव्यू निकाला है तो उसको पता है क्या पूछ सकते हैं, आपको वो गाइड कर देगा. पर अगर आपने वो ईगो रख दिया, या आपको ईगो भी छोड़ो, आप अगर शाय हो कि यार मैं कैसे पूछूँ, वो क्या सोचेगा, तो ये सब प्लीज़ मन से हटा दो. I know it's difficult for introverts to do networking, and I was also in the same boat. But if you are in the same boat, don't worry if you are an introvert. There are some mindset adjustment that you'll need to do. Don't think of it as a networking, think of it as building meaningful connections to support others and yourself. There are perks of being an introvert because you have great imagination, knack for listening, deep thinking skills, and 70% of the time that you spend is listening. So if you are a great listener, that's great quality. Don't worry. Networking for you don't have to be scary. If you are an introvert, just do it. I have observed this myself. People who are regularly in touch with the seniors perform exceptionally well during summer internship, during their final placements. They gain a lot of advantage, क्योंकि कंपनीज का एक्सपीरियंस कितना ही डाइवर्स होगा. जो सीनियर के लिए वही मेरे लिए ऑलमोस्ट 70% होगा. तो द टेक अवे फॉर यू इज कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन, फाइंड योर मेंटर्स, टॉक टू पीपल, टेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, and you need to come out of your shell. Okay, point number 4 is connected with this, embracing continuous learning. Embracing continuous learning, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है बिजनेस में. आपको देखना पड़ेगा क्या फील्ड में आया है. सो AI के वजह से मार्केटिंग में कितना चेंज आया है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या चेंज हुआ है, HR में AI के वजह से क्या क्या चेंजेस आए, फाइनेंस में AI को कौन से टूल्स यूज़ करके क्या फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं. तो इसके लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग करना पड़ेगा. आपको ChatGPT का कोर्स एक कर लेना चाहिए अगर आपको फ्री मिल रहा है यूट्यूब पे, या कोर्सेरा यूडेमी पे 400-500 रुपये का. ये आप चीज़ें कर लोगे, आपको असाइनमेंट में अंदर हेल्प हो जाएगी. आपको किसी को एक्सेल का अगर अभी से कोर्स करना है अभी, तो कंटिन्यूस लर्निंग का आपको माइंडसेट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जैसे बोलते थे 10वीं अच्छा से कर लो, 12th अच्छे से कर लो, अच्छे MBA कॉलेज में चले जाओ, लाइफ सेट है. ऐसा कुछ नहीं होता. अंदर भी स्ट्रगल है, रियल स्ट्रगल है. अब जब तक आपकी लाइफ है तब तक स्ट्रगल है, पर स्ट्रगल वो काफ़ी कम हो सकता है अगर आपका कंटिन्यूस लर्निंग का माइंडसेट है. ऐसा होना चाहिए कि यार राहुल मुझे वो एक्सेल का ट्रिक बता दे, पिवट टेबल्स कैसे बनाते हैं, राहुल डैशबोर्ड कैसे बनाता है, यार प्रेजेंटेशन में मेरी PPT में हेल्प कर दे. तो लोग आपके पास आने चाहिए खुद चल के, तभी आप कह सकते हो यू हैव रियली वर्कड ऑन योरसेल्फ बिफोर
ज्वाइनिंग MBA, राइट? बिकॉज MBA में भी काफ़ी तगड़े तगड़े जो वर्क एक्स वाले लोग आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं, कंसल्टिंग में काम कर चुके हैं, अच्छे कंपनीज में काम कर चुके हैं, तो उनका वो एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। आपको उस एक्सपीरियंस से भी लड़ना पड़ेगा, नॉट इन अ ट्रू सेंस, बट उनका जो नॉलेज है वो एक पैकेज होगा। अच्छे फील्ड से वो लोग आए हैं, अच्छे कंपनी से। अगर आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एम्ब्रेसिंग द कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट, लर्निंग माइंडसेट। पॉइंट नंबर 5, फाइनली बिल्डिंग रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। आपको रेजिलियंस मतलब बाउंसिंग बैक फ्रॉम एट्रोसिटीज, बहुत सारे चेंजेस आपको डील करने पड़ेंगे, बहुत सारा ज्ञान लेना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होगा, काफ़ी असाइनमेंट्स होंगे। यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस। कैसे बढ़ेगा? अभी क्या करें भैया? तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, इन्वेस्ट इन गो टू अ जिम, डू गेट इनटू फिजिकल एक्टिविटी, गेट इनटू शेप, बिकॉज आप बोलोगे इससे क्या रिलेटेड है, राइट? रेजिलियंस से these all things are related. Mind and matter are related. If you are not having healthy body, you will not have healthy mind. If not healthy mind, you can't focus in class, nowhere. So take care of yourself. Self care is very important. Meditation से, प्राणायाम से, विपश्यना से आपका mind काफ़ी stable हो जाएगा. You can handle ups and downs really well with equanimity. So that is really important. कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो उससे hurt नहीं होना, लोगों से ओवरवेल मत हो जाना उनका नॉलेज देख के। तो इसके लिए आपको एक स्टेबल माइंड चाहिए, स्टेबल अडेप्टेबिलिटी आपको चाहिए। सो फॉर दैट मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज इज रियली इंपॉर्टेंट। एज अ बिग ब्रदर आई हैव शेयर्ड दीज इनसाइट्स। आई होप इट हेल्प्स यू। प्लीज़ लाइक इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड अपने पूरे कम्युनिटी को ये फैला दो। जो भी रिजर्व कैटेगरी से है, कोई भी टाउन से है, लो इकोनॉमिक इससे स्टेटस है, तो उनको ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो आपकी कम्युनिटी की सबको बेनिफिट होगा। एंड प्लीज़ डू शेयर इट to the relevant WhatsApp groups that you have, and subscribe to the channel to not miss any important such videos. I'll see you in the next video. Till then, stay all sorted. Bye bye.